یہ کہانی ارحان اور اس کی فیملی کی ہے۔ ارحان کی بیوی کا نام سرینا، اس کی بیٹی کا نام زویا، جبکہ بیٹے کا نام ہیری تھا۔ ارحان کا ٹرانسفر ممبئی سے کیرالہ ہوا تھا۔ وہ اپنی کار پر ایک لمبا سفر کر کے کیرالہ میں پہنچے، جہاں 5 کلومیٹر اوپر پہاڑ پر ایک پرانی حویلی تھی جس پر ان کو رہنا تھا۔ حویلی کے پیچھے کی طرف ایک ندی بہتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبی سڑک شہر تک جاتی تھی۔ یہ جگہ کتنی پرانی اور عجیب لگتی ہے، زویا نے کہا اپنی ماں سرینا کے ساتھ اندر آتے ہوئے۔ ہاں، لیکن اس میں ایک خوبصورتی بھی ہے، سرینا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارحان نے حویلی کے دروازے کو دھیان سے دیکھا۔ یہ حویلی ہماری نئی شروعات ہے، اس نے کہا، لیکن کچھ عجیب سا احساس بھی ہے یہاں۔ جس وقت خان خاندان نے حویلی میں بسنا شروع کیا، عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ رات کو دروازے کا کھلنا بند ہونا، دیواروں سے آوازیں آنا اور حویلی کے کونے کونے پر کچھ خوفناک ڈرائنگ کا بن جانا۔ ایک دن ارحان نے حویلی کی بیسمنٹ میں ایک پرانی کتاب دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کتاب اٹھاتے ہوئے سوچا۔ کتاب پرانی اور بہت پراسرار تھی۔ ارحان نے اسے کھول کر دیکھا تو اندھیرے اور خوفناک چہروں کی تصویریں اس میں بنی ہوئی تھیں۔ ایک پرانا منتر بھی اس میں لکھا تھا جو ایک پرانے شیطان کے بارے میں تھا۔ یہ شاید وہی شیطان ہے جس کا ذکر میرے دادا نے کیا تھا، ارحان نے اپنے آپ سے کہا، لیکن یہ حویلی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ رات کو جب سب سو رہے تھے تبھی گھر میں عجیب حرکتیں شروع ہو گئیں، سائے ادھر ادھر دکھنے لگے اور زمین سے آوازیں آنے لگیں۔ ارحان مجھے ڈر لگ رہا ہے، سرینا نے کہا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ارحان نے جواب دیا۔ ایک رات خان خاندان نے حویلی میں ایک سائے کو دیکھا جو ان کے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ یہ کیا تھا؟ زویا نے ڈر کے مارے کہا۔ یہ سایہ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے، ارحان نے کہا، لیکن کیا؟ ایک رات ارحان اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے پرانی کتاب کو پھر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کتاب میں چھپے راز شاید ان کے سب سوالوں کا جواب ہے۔ اس نے کتاب کے پرانے اور پھیکے پنے پلٹے۔ ایک پنا کھولتے ہی اس نے ایک نام دیکھا، ڈریکولا۔ یہ ڈریکولا کون ہے؟ ارحان نے سوچا، اور اسی وقت ایک ہوا کا جھونکا اس کمرے میں گھسا آیا، جیسے کوئی انجانی قوت وہاں موجود ہو۔ کتاب کے اگلے پنے پر اس نے ڈریکولا کے بارے میں مزید پڑھا۔ ڈریکولا ایک پرانی شیطانی قوت کا مالک تھا۔ وہ انسانوں کا خون پینے والا ایک بھوت تھا جو صرف ایک خاص منتر سے ہی بند ہو سکتا تھا۔ ارحان نے جب یہ پڑھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ اس نے کتاب کو بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات حویلی میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی خاموشی تھی جو ڈر کا احساس کروا رہی تھی۔ زویا اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اس نے ایک سایہ دیکھا۔ امی! زویا نے چیخ کر بلایا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک سایہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ زویا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، لیکن سب کچھ دھندلا تھا۔ سایہ اور نزدیک آیا اور زویا نے دیکھا کہ وہ انسان کا نہیں بلکہ ایک بھوت کا سایہ تھا۔ زویا پھر سے چیخی، ابو! ارحان جو اپنے کمرے میں واپس جا رہا تھا، زویا کی چیخ سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑا۔ زویا، کیا ہوا؟ اس نے کمرے میں گھستے ہی پوچھا۔ ابو، یہاں ایک سایہ تھا، وہ مجھے مارنے آیا تھا، زویا روتی ہوئی بولی۔ ارحان نے کمرے کا چپا چپا دیکھا لیکن کچھ نہیں ملا۔ یہ تمہارا وہم ہے، اس نے زویا کو تسلی دی، لیکن اندر سے ارحان بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے سرینا کو بلایا اور کہا، ہمیں یہ حویلی چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ سرینا نے ارحان کی بات سنی، لیکن اس نے کہا، ہمیں گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ لیکن اس نے کہا، ہمارے گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ارحان نے رات بھر جاگ کر کتاب کے اور پنے پلٹے اور ڈریکولا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننے کی کوشش کی۔ اس نے جانا کہ ڈریکولا کو واپس بلانے کے لیے کچھ خاص چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ شیطان واپس آیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ارحان نے سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی حالات میں اپنی فیملی کو بچائے گا۔ اس رات زویا کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ارحان کو پتہ تھا یہ تو صرف شروعات ہے۔ حویلی کا راز ابھی پورے سے کھلا بھی نہیں تھا اور ڈریکولا کا خوف ان کے دلوں میں بس چکا تھا۔ اوپر کے کمرے میں زویا اور اس کا بھائی پرانی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ الماری میں ان کو کچھ کاغذ ملے۔ یہ کیا ہے؟ زویا کے بھائی نے پوچھا۔ یہ تو پرانی ڈرائنگ ہے، زویا نے کہا۔ اس نے ایک ڈرائنگ اٹھائی اور دیکھا، یہ تو ایک جوکر ہے۔ ڈرائنگ میں ایک خوفناک جوکر بنا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ارحان نے اپنے بچپن میں سنا تھا۔ اس جوکر کی آنکھیں لال تھیں اور چہرہ بالکل سفید۔ یہ تو وہی جوکر ہے جس کے بارے میں ابو بتاتے تھے، زویا نے کہا۔ دونوں بھائی بہن ڈر کے مارے نیچے بھاگ کر آئے۔ ابو یہ دیکھو، زویا نے ڈرائنگ ارحان کو دکھائی۔ ارحان نے ڈرائنگ دیکھی تو اس کے چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ تو وہی جوکر ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ حویلی اسی بری روح کا ٹھکانہ ہے۔ ارحان نے زویا اور ہیری کو اپنے روم میں جانے کو کہا۔ زویا جب اپنے روم کی طرف جا رہی تھی، اچانک سے ایک سایہ آیا اور اس نے زویا پر حملہ کیا، اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اچانک سے ایک سایہ آیا اور اس نے زویا پر حملہ کیا، اس کے ساتھ ہی وہ اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔
उस वक्त जोया थोड़ी सी डरी मगर उसको कुछ ज़्यादा महसूस ना हुआ। वो अपने रूम में जाकर सो गई। हवेली का माहौल दिन ब दिन और भयानक होता जा रहा था। जोया ने कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी थीं। एक दिन अरहान ने देखा कि जोया अपने कमरे में बैठी हुई कुछ अजीब से अल्फाज बोल रही है। जोया क्या कह रही हो? अरहान ने पूछा। जोया ने पलक भी नहीं झपकाई और अपनी धुन में मगन रही। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वो जोया नहीं कोई और हो। जोया ने एक अजीब भाषा में कुछ कहा जो अरहान ने कभी नहीं सुनी थी। अरहान ने सरीना को बुलाया। जोया कुछ अजीब हरकतें कर रही है, हमें किसी से मदद लेनी होगी, उसने कहा। सरीना ने जोया की हालत देखी और डर गई। हमें मौलवी साहब को बुलाना चाहिए। उस रात अरहान और सरीना ने गांव के मौलवी साहब को हवेली बुलाया। मौलवी साहब उनके जानने वालों में से थे और उनकी शख्सियत और परहेजगारी पूरे गांव में मशहूर थी। अरहान भाई, जोया को क्या हुआ? मौलवी साहब ने पूछा। मौलवी साहब, ये कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही है, ये ऐसी भाषा बोल रही है जो हमने कभी नहीं सुनी। मौलवी साहब ने जोया को देखा और कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ पढ़ रहे हों। जोया ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। वो यहाँ से नहीं जाएगी, इसके ऊपर शैतान का असर लगता है, जैसे ये लड़की किसी बुरी रूह के कब्जे में है, मौलवी साहब ने कहा। अरहान और सरीना डर गए। अब क्या होगा? मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना मौलवी साहब? सरीना रोते हुए बोली। हमें एक खास अमल करना होगा ताकि इस शैतानी ताकत को यहाँ से भगाया जा सके, मौलवी साहब ने जवाब दिया। लेकिन यह आसान नहीं होगा। मौलवी साहब ने अपनी किताब से कुछ मंत्र पढ़े और जोया पर पानी छिड़का। जोया ने फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये नहीं हो सकता। लेकिन मौलवी साहब ने अपना अमल जारी रखा। धीरे धीरे जोया का चीखना कम होता गया और उसने होश खो दिया। मौलवी साहब ने कहा, अब ये ठीक है, मगर ये सिर्फ पहला कदम है। हमें अभी और बहुत कुछ करना होगा ताकि ये बुरी रूह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। अरहान और सरीना ने तसल्ली से जोया को देखा। वो अब शांत लग रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये सब कुछ आर्जी है। सुबह का वक्त था और अरहान और मौलवी साहब हवेली के बाहर खड़े थे। जोया की रात वाली हालत ने उन्हें उस बुरे साये के असल राज तक पहुँचने पर मजबूर कर दिया था। मौलवी साहब, हमें ये पता लगाना होगा कि ये बुरी ताकत आई कहाँ से। बिल्कुल अरहान भाई, हम गांव में कुछ पुरानी जगहों को देखते हैं, शायद वहां से हमें कुछ सबूत मिल सके, मौलवी साहब ने जवाब दिया। गांव की गलियों से गुजरकर अरहान और मौलवी साहब ने कई लोगों से बात की। एक बूढ़ा आदमी उन्हें मिला जो गांव की बहुत सी पुरानी कहानियां जानता था। रामदीन, इस गांव में कभी कोई ऐसा अजीब वाकया हुआ है? अरहान ने पूछा। हाँ बेटा, बहुत साल पहले गाँव के पास एक पुराना मंदिर है जहाँ कुछ अजीब चेहरे नजर आते थे। लोग वहाँ नहीं जाते थे, रामदीन काका ने जवाब दिया। ये मंदिर कहाँ है? मौलवी साहब ने पूछा। ये गांव के पास के जंगल में है, उसका रास्ता मुश्किल है, लेकिन तुम्हें वहाँ बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर मेरी मानो तो वहाँ न जाओ, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है उसकी लाश हमेशा पुरानी हवेली के पास से ही मिलती थी। उसकी लाश का सारा खून किसी ने पी लिया होता था। अरहान और मौलवी साहब ने काका की बात ना मानी और उस जंगल की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। जंगल के अंदर घंटी की आवाज़ बहुत ही डरावनी सी सुनाई दे रही थी, जो उन्हें काफ़ी बेचैन भी कर रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर नजर आया। ये वही जगह है जिसका जिक्र रामदीन काका ने किया था, अरहान ने कहा। मंदिर के अंदर घुसते ही उनकी दीवारों पर कुछ पुराने निशान और अल्फाज देखे। अरहान ने अपनी किताब निकाली और देखने लगा। मौलवी साहब, ये निशान और अल्फाज तो इस किताब में भी हैं। ये तो बहुत बड़ी खोज है। ये मंदिर जरूर उस बुरे साये से जुड़ा है, मौलवी साहब ने कहा। दोनों ने मंदिर को गहराई से देखा। वहाँ एक छोटा सा पूजा घर था जहाँ कुछ अजीब और पुरानी चीजें थी। हमें ये सबूत लेकर वापस जाना होगा और पता लगाना होगा कि इनका मतलब क्या है, अरहान ने कहा। जंगल से वापस आते वक्त अरहान और मौलवी साहब ने फैसला किया कि ये राज जल्द से जल्द खोलना होगा ताकि जोया और बाकी सबको इस बुराई से बचाया जा सके। हवेली के राज दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। अरहान और मौलवी साहब ने मंदिर में जो निशानात और अल्फाज देखे थे उनकी छानबीन करने के बाद एक पुरानी कहानी सामने आई। अरहान ने किताब में लिखी हुई पुरानी दास्तान को पढ़ना शुरू किया। कई साल पहले गांव एक सुकून भरी जगह थी, लेकिन एक दिन वहां एक अजीब सी अफवाह फैली। गांव के लोग कहते थे कि एक भयानक शैतान ड्रैकुला जंगल के मंदिर में बस गया है। लोगों ने डर के मारे वहां जाना छोड़ दिया। एक रात गांव में कुछ अजीब और डरावने वाकयात होने लगे। थोड़े ही अरसे में गांव में बहुत कुछ अजीब और डरावने से वाकयात होने लगे। गांव के लोग कहते थे कि ड्रैकुला ने गांव पर अपना साया डाल दिया है। उसकी भयानक शक्ल और लहू से भरी आंखें लोगों को डराने लगी थीं। गांव के सरदार ने फैसला किया कि इस शैतान को हराने का वक्त आ गया है। सरदार ने अपने बहादुर लोगों को बुलाया और एक प्लान बनाया। गाँव के लोग तैयार हुए और अपने हथियार उठाए। मंदिर के पास गाँव के लोगों ने ड्रैकुला के साथ लड़ना शुरू किया। ये लड़ाई बहुत मुश्किल और भयानक थी। ड्रैकुला की ताकत इंसानों के लिए शायद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। सरदार ने एक ख़ास मंत्र का सहारा लिया जो उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। ये मंत्र सिर्फ एक शर्त पर काम करता था।
उस शैतान को एक ख़ास जगह पर बंद करना होता था, मगर जो इंसान ये मंत्र पढ़ेगा वो ड्रैकुला को तो बंद कर देगा मगर खुद भी मर जाएगा। लेकिन सरदार ने अपनी जान की फिक्र किए बिना इस प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मंदिर के नीचे एक खुफिया रास्ता जो तहखाने की तरफ ले जाता था, सरदार ने ड्रैकुला को उस तहखाने में बांधने का प्लान बनाया था। बहुत मुश्किल और ताकत लगाने के बाद गांव के लोग ड्रैकुला को नीचे ले ही आए। सरदार ने मंत्र पढ़ा और ड्रैकुला को उस तहखाने में बंद कर दिया। ड्रैकुला का गुस्सा और चीखें सुनाई दी, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता था। दूसरी तरफ उसी वक्त सरदार के जिस्म सूखता गया और उसका जिस्म पतला होता गया। आखिरकार उसके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां ही रह गईं। फिर एक हवा का झोंका आया और सरदार का जिस्म काला धुआं बनकर उड़ गया। गांव के लोगों ने सोचा कि उन्होंने ड्रैकुला को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन सच ये था कि ड्रैकुला सिर्फ सोया था, लेकिन उसकी असली ताकत तो ख़त्म नहीं हुई थी, बस उसको सिर्फ नींद में डाला गया था। ये राज मंदिर के नीचे हवेली तक पहुंच गया। हवेली के नीचे एक रास्ता था जो सीधा उसी तहखाने तक जाता था। ये राज पुरानी किताबों और निशानात में छुपाए गए थे। अरहान ने यह सब पढ़कर सोचा, ड्रैकुला अभी भी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ, हमें इस राज को और गहराई से समझना होगा। मौलवी साहब ने कहा, हाँ अरहान भाई, ये तो बस शुरुआत है, हमें उस ड्रैकुला को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। मौलवी साहब, वक्त कम है और जोया की तबीयत हर घंटे बिगड़ती जा रही है। अरहान ने परेशानी से कहा, हाँ अरहान, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, ड्रैकुला का खात्मा अब बहुत ज़रूरी हो गया है। कमरे में हर तरफ पुरानी किताबें और तावीज़ बिखरे हुए थे। मौलवी साहब एक किताब को पढ़ रहे थे जिसमें ड्रैकुला को शिकस्त देने का तरीका लिखा था। ये किताब कहती थी कि ड्रैकुला की रूह को कैद करने के लिए हमें एक ख़ास मंत्र पढ़ना होगा और उसे अपनी कब्र में वापस भेजना होगा जहाँ से वो निकला था। अरहान ने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी और कहा, मैं तैयार हूँ, हमें जल्दी से ड्रैकुला को रोकना होगा। इतने में एक खौफनाक चीख सुनाई दी। अरहान और मौलवी साहब जल्दी से जोया के कमरे की तरफ बढ़े। जोया बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, उसके चेहरे पर इंतहाई तकलीफ दिखाई दे रही थी। जोया को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अरहान ने जोश से कहा। मौलवी साहब ने एक तवीज़ जोया के माथे पर रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे जोया की तबीयत में थोड़ी बेहतरी आई, लेकिन वक्त अब कम था, हमें जल्दी करनी होगी। जोया को बचाने के लिए हमें ड्रैकुला को रोकना ही होगा। अरहान और मौलवी साहब ने फैसला किया कि वो हवेली के नीचे उस रास्ते को खोजेंगे और ड्रैकुला को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ गाँव में माहौल दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। ड्रैकुला की बंदिश के कमज़ोर होने से अजीब और डरावने वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया था। लोगों के दिल में डर और वहम पैदा होने लगा था कि क्या ड्रैकुला अब वापस आने वाला है। अरहान और मौलवी साहब ने महसूस किया कि ड्रैकुला की असलियत ज़ाहिर होने के वक्त नज़दीक आ रहा है। उन्हें यह भी पता था कि अब उन्हें कुछ करना ज़रूरी है, वरना ड्रैकुला का ख़तरनाक साया हवेली और गांव पर हमेशा के लिए छा जाएगा। अरहान ने अपने बच्चों को और अपने परिवार को बचाने का फ़ैसला किया। मौलवी साहब भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। गांव के लोगों ने भी हामी भर ली। एक रात जब अंधेरा गांव में छा गया, एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होने लगी। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन कुछ लोगों ने एक साये को देखा जो बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ डरावना और भयानक था, जैसे कोई अनजान ताकत हवेली के करीब आ रही हो। ड्रैकुला अब ज़ाहिर होने लगा था। उसका साया अब हवेली के अंदर और बाहर दोनों जगह से दिखाई देने लगा था। लोगों के दिलों में डर मज़ीद बढ़ने लग गया। कुछ लोग तो ये सोचने लगे कि शायद ड्रैकुला बदला लेने के लिए वापस आ गया है। अरहान ने मौलवी साहब से कहा, यह ड्रैकुला अब ज़ाहिर होने लगा है, हमें इसे रोकना होगा, वरना ये गांव और हवेली सब कुछ ख़त्म कर देगा। हाँ अरहान भाई, अब ड्रैकुला से मुकाबला करने का वक्त आ गया है, हमें इसके लिए तैयार होना होगा। इस डरावनी रात में गाँव के लोग तैयार हो गए ड्रैकुला का सामना करने के लिए। रात के वक्त अरहान, मौलवी साहब और गांव वाले सब पुराने मंदिर की तरफ चले गए। अब सब पुराने मंदिर में एक ख़ास रस्म को अदा करने वाले थे जो मौलवी साहब ने पढ़नी थी। ड्रैकुला को हमेशा के लिए ख़त्म करने का वक्त आ चुका था। सब तैयार हैं? मौलवी साहब ने गांव वालों से पूछा। हाँ, हम सब तैयार हैं, एक साथ सारे गांव वालों ने कहा। अरहान ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और मौलवी साहब के साथ रस्म शुरू की। मंदिर में हर तरफ दिया और मोमबत्तियाँ जल रही थीं। मंत्र की आवाज़ पर पूरी जगह गूंज रही थी। इतने में हवेली के अंदर जोया अपनी माँ सरीना के साथ आई। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और सरीना उसके पास बैठी थी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जोया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सरीना ने आंसू पूछते हुए कहा। मगर जोया एकदम से खड़ी हो गई और उसका जिस्म का रंग काला होने लगा। एकदम से एक साया उसके जिस्म से निकला, मगर साथ में वो जोया की जान भी ले गया। सरीना ने सिर्फ एक दर्द भरी आहट की आवाज़ सुनी और जोया को खुद से अलग होते महसूस किया। जोया, सरीना ने चीखते हुए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और जोया की नब्ज़ बंद हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। दूसरी तरफ मंदिर के अंदर रस्म अपनी आखिरी मराइल में थी। एक ज़ोरदार चीख के साथ ड्रैकुला की रूह सामने आई। गांव वालों ने जल्दी से उसे घेरे में ले लिया।
اب مقابلہ شروع ہوگا ڈریکولا کے ساتھ۔ ارحان نے طاقت سے کہا اور تلوار سے وار کیا۔ ڈریکولا نے زوردار مکہ مارا اور ارحان کو پیچھے گرا دیا۔ گاؤں والے اور مولوی صاحب نے بھی ڈریکولا پر حملہ کیا۔ حملہ بہت ہی سخت تھا، ہر طرف خون اور چیخوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ڈریکولا غائب ہو جاتا اور ایک نہ ایک گاؤں والے کے پیچھے سے نمودار ہوتا اور اس کو گردن پر وار کر کے اس کا خون پی لیتا۔ اس طرح ایک ایک کر کے گاؤں والے گرنے لگے۔ مولوی صاحب کا منتر جب تقریباً مکمل ہونے لگا تو ڈریکولا نے مولوی صاحب پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ ڈریکولا اب سب پر بھاری پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے آخری لمحوں میں ایک منتر زور زور سے پڑھنا شروع کیا۔ ارحان اب تمہارا وقت ہے، مولوی صاحب نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ ارحان نے تلوار کو اٹھایا اور ڈریکولا کی طرف بھاگا۔ ڈریکولا نے ارحان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن ارحان نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ تلوار کو ڈریکولا کے سینے میں گھسا دیا۔ ڈریکولا ایک زوردار چیخ مار کر گر گیا، اس کی روح ہوا میں پھیل گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ارحان نے اپنے آس پاس دیکھا، ہر طرف اس کے اپنے لوگ مرے پڑے تھے۔ مولوی صاحب بھی اپنی آخری سانسیں لے چکے تھے، صرف ارحان ہی زندہ بچا تھا۔ ارحان نے گر کر اپنی تلوار کو زمین پر رکھا اور سوچا، یہ جنگ جیت گئے لیکن سب کچھ کھونا پڑا۔ حویلی میں واپس آتے ہی اس نے سرینا کو زویا کے پاس روتے ہوئے دیکھا۔ ارحان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے سوچا، اب ہمارے پاس صرف یادیں اور یہ جنگ کا نتیجہ ہی بچا ہے۔